हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है आज की मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम कवर करने वाले BGIS 2026 के बारे में। आज गॉड ग्रुप ए और ग्रुप बी का गाइस आज चौथा दिन है। आज अपने तीन मुकाबले खेलेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी। पहले 3 मैच खेलेंगे ग्रुप ए और आखिरी के 3 मैच खेलेंगे ग्रुप बी। देखते हैं आज कौन सी टीम बहुत बढ़िया खेल पाती है। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। Out exactly, he's still there, but he does not have any HP to work with. Snowjord on the other side also extremely low. And now with a single nade, Rapid Chaos can secure those 2 points up front. OG have picked off one. Igbozon is down to the last 2 players. And at this point, I think it is the end game blue zone collapse. So this is time for the final showdown between our top 4. 11 players left. Team Igbozon, they are not going to be live for long as Omega gets shut down as well. Rapid Chaos Esports, they are looking to make that bounce back on the top 8. They have been shooed away. They have been beaten. They have been battered. But now it is time for payback. And we have been talking about that. It is time for payback for both OG, Rapid Chaos as well as 8-Bit as this battle begins. Nades connect. Aru and Wiz got on their knees. Atanki barely holding on to that crater. But it seems like all 3 players are going to fall. And it's just AKOP from Orangutan who stays alive. Brilliant counter from Team 8-Bit. And now it's time for Rapid Chaos to join this party. And they understand this is what they saved their nades for. This is their moment to shine. Yeah, Rapid Chaos, this is going to be an easy chicken dinner for them because of OG and 8-Bit taking each other out. Rapid Chaos just held themselves back. OG, they have 9 eliminations. OG has 11, 8-Bit has 9 eliminations, but Sarang, incredible spray coming through, picks up one man from the side of Rapid Chaos, but he has to take down Arjun, a man who in this match has lived up to the identity of the warrior from Mahabharat. Sees Skips shooting in a different direction. His back to... And it is a 3v1, but what a standoff in between K9 and Autobots do we have? But Necro, look at this. K9 Esports, they're actually out in the open. They shut him down. It was Omega who find the knock, but Slug in the front lines has been knocked down. It is Team Autobots who want to chime in as these nades to come in. It is Knight and Omega who keep themselves alive, but this nade can do a lot of damage. Lobster in those rice fields and laid down in the open. Night falls. It's all down to the IGL who gets shut down as well. It is Autobots who steal away the chicken dinner from the hands, from the clutches of K9. But it's been a fantastic game. In to help out Rapid Chaos Esports. Oh no, no nades available, Ralphie. The man does not have anything, but still the shots, they're too deadly. Ralphie was able to find one, but that's all he got. Rapid Chaos Esports, they're down 2 men. If Blitz wants, they need to pounce on top of the opportunity right now. This is the only possible way Blitz can shut down Rapid Chaos Esports. They're down 2 men. Rapid Chaos Esports given enough time to go for the reset. Another man falls down. Constant problems brewing up. And Rapid Chaos Esports, they're taking too much damage. God's Reign, they've only got 2 men standing. Another nade tossed out against Rapid Chaos. This nade, it's going to get real up close. Toxic still there. Dhruv, he wants to fall back towards Toxic. There's a big smoke pathway being created by Rapid Chaos. This wall, it's going to protect them for a while. But for how long, that's the question. Oh my goodness, the nade, they need to find connection here. Delta is struggling to find one. He has one Molotov. But at the same time, Soham was able to get confirmation here. So it is going to be a 3v2 situation. Well, make that a 3v2 here. Because Delta was able to find another one as well. Just like that, Rapid Chaos Esports goes down. Tag team by both Blitz and God's Reign. But now it's down to 1-on-3. This seems like an impossible clutch. Delta left in a real bad situation. God's Reign, they can't do a lot. But Delta, he still finds one knock. And that's... टीम ने टोटल 8 फ्लैग्स हैं, रीपर के पास 3, एमगॉट 4, मिस्टर आईजीएल के पास भी। बट प्रॉब्लम ये है ना मेजी, अब लॉन्ग रेंज की बैटल करने के लिए गोलियां तो नहीं है ज्यादा इनके पास जाना पड़ेगा। शॉटगन्स का फायदा अब उठाना पड़ेगा। पर एमगॉट गलती हुई वहां पर, क्योंकि जोन में ना जाकर, जोन के सेंटर में ना जाकर उन्होंने फाइट लेना ज्यादा सही समझा। पर टीम तामला स्मोक्स अच्छे तरीके से बिछाए गए और एक तरीके से दीवार खड़ी कर दी गई है कि आप दूसरे साइड पर, हम दूसरे साइड पर। एमगॉड, उनका एलिमिनेशन हुआ और ऐश के सामने से वो गाड़ी होकर निकल गई। और अभी भी टीम तामिलाज वो कोशिश करते हुए प्लेयर्स, पर रेक्स बॉय हैं जिन्होंने रीपर को डाउन कर दिया। और टीम तामिलाज अब वो बचेंगे एकमात्र खिलाड़ी के साथ। ऐश, क्या वो यहां से शॉट लेना चाहेंगे? एक ग्रेनेड उनके पास है, एक मोलोटॉव उनके पास है, पर अभी तक वो मोलोटॉव उन्होंने नहीं डाला, वो ग्रेनेड भी वो डालकर नहीं गए। रेक्स बॉय, उनको वो रेंगने की आवाज फाइनली सुनाई दे गई। और ऐश, जिनके पास मौका था थोड़े और फ्रैग
वो आपको अवॉइड करना होगा। चलिए उसके बाद भी उन्होंने वो सर्वाइवल के लिए कुछ हद तक जगह बना लिया। 2 खिलाड़ी अभी भी इस मैच में बने हुए। रीपर हालांकि वो प्ले जोन के बाहर है, आगे आने की जरूरत। बॉक्स एक इनिशियल नॉक निकाला गया और ये जो पॉइंट चाहिए था यहाँ पे राइजिंग को वो गवा दिया गया इनके एंड से। अभी तो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स काफी ज्यादा बेहतर है, चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी उनके लिए बन सकती है, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां जिसके कारण मौका बना नहीं। और फॉक्स एक लौटे खिलाड़ी और नॉनेक्स के प्लेयर्स को वो गिरते हुए कोटन अब उनके कमान में थोड़ा सा ज्यादा वो बाहर स्मोक करके विजन डिनाई करेंगे और उसके बाद फाइनल ग्रेनेड करने की कोशिश। और ये अच्छा अप्रोच है, जब बिल्कुल ऑफ गार्ड है ना स्मोक करके एटलीस्ट आप विजन ब्लॉक करना चाहोगे और वो ग्रेनेड से नॉक। लेकिन ये ग्रेनेड से पहले ही कोटन ने अपना काम करके दिखाया। इनिशियल नॉक आ चुका है, अब तो स्मोक और थोड़ा पास होता हुआ, लेकिन स्प्रे गॉड उन्हें बचा के जाना इस पॉइंट पे असंभव। टीम एक्स के पास एटलीस्ट एक फिनिश तो गया। मैं तो टीकेएम को देख रहा हूँ, मौका उनके पास भी है चिकन निकालने का, बट ये फ्रैग्स तो देखिए आप बस गिनते रहिए। ये 10वां फ्रैग्स वाइल्ड फैंग्स के लिए एंड दे आर शोइंग देयर क्लास वंस अगेन एक आखिरी मुकाबले के अंदर। बट अब एक सिनेरियो ऐसा बना है जहाँ पे सामने अपोनेंट्स के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज है और वाइल्ड फैंग्स के दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े स्प्लिट में हैं। आइसोलेट करके उनको खत्म करने का मौका पूरा है। काना यहाँ पे गोटन को कवर दे नहीं सकते और वो नेट बिल्कुल सही जगह पे आया। नाउ काना इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v3 का मौका उनके पास। मुश्किल रहेगा यहाँ से क्योंकि 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग डायरेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं स्प्रे के साथ। अब तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी है, तो काना क्या यहाँ से अभी भी कोई होप हम मान के चल सकते हैं चिकन डिनर के लिए? जी नहीं, फ्यूचर ने यहाँ पे। और गाइस इसी तरह से आज के सारे मुकाबले ख़त्म होते हैं। आज अपने दोनों ग्रुप ने अपने 3-3 मुकाबले ख़त्म किए और आज सारे ही टीम के 15 मैच ख़त्म हो चुके हैं गाइस। और बहुत 9 या 10 मैच और बाकी है। देखते हैं कौन सी टीम टॉप 8 में क्वालिफाई कर पाती है। गॉड लाइक का तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। वो टीम तो उतने पॉइंट्स तो नहीं निकाल के जा रही। मतलब पहला मैच तो बहुत बढ़िया था और वो बहुत बढ़िया और कर सकते थे, मतलब चिकन डिनर के लिए खेल सकते थे। और दूसरा मैच भी उतना कुछ खास नहीं गया था गाइस। और तीसरा मैच भी बहुत कम पॉइंट्स है, मतलब एवरेज डे भी नहीं बोल सकते इसे आप वर्ल्ड की तरफ से। तो अब चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ, देखते हैं कि आप किस टीम ने कितने पॉइंट्स निकाले। तो अब चलते हैं ग्रुप ए की तरफ। ग्रुप ए की तरफ से K9 टेबल टॉप करते हुए 150 कर चुके हैं गाइस 15 मैचेस में। मतलब एवरेज 10 पॉइंट्स एवरेज है गाइस हर मैच का इनका। मतलब ये टीम तो बहुत ही बढ़िया खेल रही है। दूसरे नंबर पे GDR हो गए कंसिस्टेंट और HBSN 134 और ऑटो बार्स 111 ब्लिट्स 111 के साथ है गाइस। मतलब बहुत ही बढ़िया खेली ब्लिट्स ने भी अब। और 7 पर रिपर से 101 के साथ और 8 पर 87 के साथ में बोला स्पोर्ट्स है गाइस। और ये रही टॉप 8। अब चलते हैं ग्रुप बी की तरफ, देखते हैं उसमें कौन टॉप किया था। और ग्रुप बी में हो गई नॉनेक्स 135, Zist 126, जेनेसिस 113, वाइल्ड फ्रैंक्स 112, TT 108 और राइजिंग स्पॉट 99 के साथ सिन्वे 89 के साथ। ये रही टॉप 8 गाइस। अब देखते हैं कल किस तरह सारी टीम अपने अपने मुकाबले खेलते हैं। तो ये वीडियो ज़रा से अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़िए रहिए मेरे साथ। BGIS के 2020 से हम पूरा सीज़न कवर करने वाला हूँ। जब तक के लिए बाय और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।